Abhishek Aneja, sir. He's a chartered accountant who specializes in finance, taxations. He has completed multiple qualifications, certifications from like prestigious Indian and foreign institutions, right? So it's an honor to have sir here. He's a regular contributor to all these leading Indian and international news media publications, which includes you might have heard about moneycontrol.com, Money9, BizBuzz, and many more. Abhishek sir is a passionate person who loves helping families and helping them achieve those financial wellness and creating long-term wealth by making finance simple for them. Like it's amazing to see sir adapt to this Gen Z culture of making reels and making it so entertaining for us that we can also understand and interact. जाकि हम भी उस लेवल पर आकर समझ पाए तो रादर हम क्या आपके लेवल पर आएंगे यू आर हेल्पिंग अस टू help our mediocre brains to understand that through simple words and things. So to So no, personal no way finance. in mediocre. I'm amazed to see the knowledge and expertise that you guys have got in such a early start of your career, and that is amazing. And even I get to learn a lot from the youngsters like you. आप लोग सिखाते रहते हो, हम सीखते रहते हैं. Bilkul, sir. Works both ways, absolutely. So he writes informative blogs also. He creates videos in areas of personal finance, money management, corporate finance, investing, taxes, all sorts of things. So to make personal finance simple for us millennials, he's also writing a book based on experiences and dealing with various financial issues, that are faced by us, by them, by everyone basically. So beyond sir's professional achievements, Abhishek sir is also active on the social front. He leads our Rotary Club in Gurgaon. He's successfully carried out like various initiatives that serve the society and make a positive impact on people's life. I have worked along with Abhishek Aneja sir, and I've got to learn a lot from him. And it's always amazing. It's a great experience being around him, working with people that are close to him, that are around him. So thank you, sir, for being here today. It's amazing to see you. Thanks again हाँ, for inviting me today. बिल्कुल सर बिल्कुल. So sir, since we'll be talking about finance, simple word में अगर हम समझना चाहें, what is finance? यहाँ से start करते हैं. What is finance? Simple words में. Okay, finance is the flow of money. Okay, you receive money, you hold it, you spend it, you save it, you invest it, you pay taxes on it. So all this flow of money is known as finance. Right. Okay. So sir, फाइनेंस से हम एक इंडियन लोग हम सब लोग बोलते हैं यार बजट, यार थोड़ा बजट नहीं है भाई, बजट क्या होता है? What is the importance of what is budget? What is the importance of budgeting? How can you create a budget that can actually work for you? जिससे ये ना बोलना पड़े कि यार बजट थोड़ा सा टाइट है. देखो, बजट की एक खास बात होती है कि वो हमेशा टाइट होता है. बजट हमेशा टाइट. All of us have very limited source of money, and all of us want to do a lot of things in our life. Right. ठीक है ना. और जब हम कॉलेज लाइफ में आते हैं, स्कूल लाइफ को छोड़ के, तो एक अलग फ्लेवर होता है, एक अलग फ्लेवर मिलता है लाइफ का. और उसमें क्या होता है कि वी ट्राई टू गेट इंडल्ज इन सो मेनी एक्टिविटीज. बहुत सारे एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी एक्टिविटीज नई हमारे पास लाइफ में स्टार्ट हो जाती हैं, और हम लोग बहुत सारी चीजें नई नई चीजें ट्राई आउट करते हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स ट्राई आउट करते हैं, नए नए क्लब्स ट्राई आउट करते हैं, नए नए इवेंट्स पे जाते हैं, एक फ्रेंड सर्कल मिल जाता है. तो एक बहुत सारी चीजें उस एज में जब हम कॉलेज में जाते हैं हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाती हैं. जी. अब बजट पे अगर हम आते हैं तो बजट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप बजट फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है जो कि अदरवाइज नहीं आ पाता. ठीक है, आप समझते हैं कि व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट, व्हाट यू कैन स्पेंड अपॉन एंड व्हाट इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर फॉर यू. अगर आप बजट नहीं बनाते तो क्या होगा कि आपके पैसे जो है वो इधर उधर ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाएंगे कि आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा. ठीक है. और आपके पास जब आपको कोई चीज जरूरी करनी होगी तो आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे. और फिर याद आएगा, ओह मैं वहां पैसे बचा सकता था, मैं वहां पैसे बचा सकता था, मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, वैसे कर लेता तो वैसे हो जाता. तो फाइनेंशियल आपका जब तक आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं रहेंगे तो यू विल बी स्पेंडिंग योर मनी वेस्टलेसली. ठीक है, वेस्टफुली, एंड यू विल ऑलवेज बी डिप्राइव्ड ऑफ द थिंग्स दैट यू एक्चुअली वांट. तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. अब बजट को इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो बजट को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक बेसिक तरीके की बात करूं, एक जापानीज कंसेप्ट है कैकीबो का. कैकीबो का एक जापानीज कंसेप्ट. कैकीबो का. ओके. ठीक है. अब वो मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मिलेनियल्स और जेनजी को ना ऐसे वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं.
Right, the cool catchy हाँ words. हाँ, दे लाइक दीज वर्ड्स, ठीक है। Right, अब इंडिया में ये प्रैक्टिस को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को देखोगे तो आप देखोगे कि वो एक एक खर्चा नोट करके करते थे, right. ठीक है। जापानीज कंसेप्ट भी यही कहते हैं कि आप अपने खर्चे को नोट करो, Hmm, यू नोट व्हाट यू आर गेटिंग इन, मतलब व्हाट मनी यू आर गेटिंग hmm, एंड वेयर इट इज गोइंग, एंड स्टार्ट क्लासिफाइंग दैट मनी into what you right, actually need and why you need that, ठीक है ना। what your wants are and why you want them, right. ठीक है ना। इसके अलावा आपका आपके लिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। तो उसके अंदर वो आप जब आप वो चीजों को नोट करना शुरू करोगे, यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हु यू आर, वेयर योर मनी इज गोइंग, Absolutely. एंड देन ओनली वंस यू स्टार्ट ट्रैकिंग एंड यू कैन पुट इट इन द बजट, इन द फ्रेमवर्क। बजट क्या, बजट सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। Hmm, आपका इनकम आई, आपका स्पेंडिंग हुई और आपकी क्या सेविंग्स है, इसका फ्रेमवर्क है। okay. So sir, कोई परफेक्ट एज होता है, कोई पर्टिकुलर एज है जो हमें दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ भाई इस एज से वी शुड हैव अ बजट? इज बजटिंग एज के हिसाब से चलता है? इज इट लाइक दैट, और वी कैन हाउ, व्हाट डू यू हैव योर द पर्सपेक्टिव ऑन दिस? अर्ली यू कैन स्टार्ट डूइंग बजटिंग फॉर यू, आपके पास अगर आप स्कूल में भी हैं और आपको पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलती है, देन आल्सो यू कैन डू बजटिंग, ग्रेट. ठीक। तो लेकिन द अब अर्लियर होता द है कि बेटर. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ी थोड़ी हमें कॉलेज टाइम पे मिलनी शुरू होती है, तो जी वहां जी. पे इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। इसके बाद जब हम जॉब्स में जाते हैं, वी स्टार्ट वर्किंग, ओके, तो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि अब हम खुद अर्न कर रहे होते हैं, तो हमारी राइट होती है उस पैसे के ऊपर, राइट. ठीक है। तो जब हम हमारी राइट होती है उस पैसे के ऊपर, तो हम उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। हम्म. लेकिन बजट आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। हम्म. एवरी एज इज अ राइट एज टू स्टार्ट मैनेजिंग योर मनी। राइट. तो सर आज आपने बोला कि हाँ कॉलेज स्टूडेंट्स जब हम बन जाते हैं तब वो थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने लगती है. सिमिलरली आपने देखा होगा, मेनी व्यूअर्स कैन आल्सो रिलेट, हम कॉलेज स्टूडेंट जब मेट्रो स्टेशन में होते हैं या ऐसे जगह पर होते हैं, कोई ना कोई हमारे पास आएगा, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर ये ले लो, सर वो ले लो. तो सर इससे फिर एक और कॉन्सेप्ट खुल जाता है कि क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट स्कोर क्या होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेसिंग अप आवर ब्रेन्स. तो अगर आपको ये समझाना हो कि व्हाट इज क्रेडिट स्कोर, जो बोला जाता है कि भाई क्रेडिट स्कोर तो अच्छी होनी चाहिए, तो एक अच्छी क्रेडिट स्कोर हम कैसे रख सकते हैं, व्हाट आर, हाउ इंपॉर्टेंट इट एक्चुअली इज? सी, क्रेडिट स्कोर का एक सिंपल फंडा होता है कि व्हाटएवर यू आर बाइंग और व्हाटएवर यू आर ड्राइंग एनी फ्रॉम एनी क्रेडिट लिमिट, वेदर इट इज अ क्रेडिट कार्ड, और आजकल तो पे लेटर आ गया है, हम्म. ठीक है। whenever you are say pay later is also provided, it is actually a personal loan which is provided by the banks, राइट. ठीक है ना। तो जब आप पे लेटर यूज करते हो या आप जब क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो आप उसको रेगुलरली पे करो, उसकी ड्यू डेट से पहले पे करो और कंप्लीटली पे करो। अगर आप उसे कंप्लीटली पे नहीं करोगे तो एक सिस्टम में एक मैसेज आता है कि यू आर नॉट एबल टू पे इट, एंड व्हेन यू आर राइट. नॉट एबल टू पे इट, तो आपका क्रेडिट कार्ड का जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है। हम्म. और अगर आप उसको टाइमली रीपे करते हो, देन दैट मींस दैट यू आर जस्ट यूजिंग अ फैसिलिटी। हम्म. आप सिर्फ एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, आप वो यूज कर रहे हो, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि यू आर गोइंग टू रन अवे विद दैट मनी, राइट. ठीक है ना। तो इट बिल्ड्स अप द क्रेडिट स्कोर। अब होता क्या है कि जब आप कॉलेज में होते हो तो आपकी इनकम तो होती नहीं है, हम्म. तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं, तो अच्छा. ठीक है। अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो एक सिंपल सा हैक होता है कि एक आपको एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इवन मैंने जब अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था तो मेरा भी क्रेडिट स्कोर नहीं था। हम्म. I had deposited some amount as an FD, और उसके अगेंस्ट मुझे क्रेडिट कार्ड इशू हुआ था। हम्म. उसके बाद as and when my income started growing, तो मैं उसका रीपे करता गया और मेरा क्रेडिट स्कोर थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप होता गया, और फाइनली उसके बाद मेरे पास हर तरह के कार्ड्स मेरे पास आ गए, जस्ट बाय बिल्डिंग अ गुड क्रेडिट स्कोर. जस्ट बाय बिल्डिंग अ गुड क्रेडिट स्कोर। बिकॉज क्या होता है कि जब आप उसके बाद जब आपको एक्चुअल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है विदाउट दैट एफडी एंड ऑल, तो कई कंपनीज आपको ये ऑफर करती है कि अगर आप आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक चल रहा होता है तो आपका क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिकली बढ़ाती रहती है। अच्छा. हम्म. हम्म. So that trust is mutually built, right? Great. Great. So sir, for us students, what do you think, मतलब आपने भी देखा होगा, हम youngsters को आप observe जरूर करते हो. So what do you think are some of the common mistakes जो हम कर जाते हैं while while managing our finances, and how can we actually avoid them? Actually, if you go through the comment sections also, Mickey, right, Mukund, he's written that I think if I followed this only piece of advice, my money is going to be back on track. But it's always like I spend everything in the first week, and let's train the last of the 4 weeks of the month. This is just one mistake that we all can relate. either you are on top of your money or you are at the bottom level। या तो ऐसा होगा कि आप पूरी तरह से कंट्रोल में होगे अपने फाइनेंसेस के, you know where you are spending and when you have to spend it,
ठीक है, या फिर क्या होगा कि आपके पास बिल्स की लंबी लाइन होगी, क्रेडिट कार्ड्स की लंबी लाइन होगी, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ पैसे नहीं बचेंगे, फिर आप ढूंढ रहे होंगे कहीं से कुछ पैसे आ जाए जिससे कि हम उनको रीपे कर सके, जो कि अब बचे हुए बिल आ रहे हैं। और होता क्या है कि मैंने जैसा पहले बोला कि जब हम कॉलेज लाइफ में आते हैं ना, तो हमारे ऊपर ना एक पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। हम कई बार तो क्या होता है कि हम मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं कि ये वाला ग्रुप भी अच्छा है, वो वाला भी अच्छा है, ये वाला यार ये वाले में जाऊंगा तो मैं थोड़ा हैप ज्यादा लगूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है इस वाले में मेरा काम से रिलेटेड होगा, ये वाले में कूल वाला ग्रुप हो गया। और होता जी क्या है सर, कि देखो, आप जितने ग्रुप ज्वाइन करोगे, हर ग्रुप में कुछ ना कुछ आपका एक्सपेंस जाएगा, ऑफ कोर्स। ठीक है ना, आपका टाइम भी जाएगा और एक्सपेंस भी जाएगा। तो आप जहां पे भी जिस भी ग्रुप्स में ज्वाइन कर रहे हो, देन यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ बैलेंस। वो बैलेंस आपको खुद ही बिल्डअप करना पड़ेगा। द मोस्ट अमेजिंग सॉरी द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ द पर्सनल फाइनेंस की वो पर्सनल है, ठीक है। आपका पर्सनल फाइनेंस, आपका फ्लो ऑफ मनी अलग है, किसी और का फ्लो ऑफ मनी अलग होगा। आपको हो सकता है आपके पेरेंट 10,000 रुपीज दे रहे हो मंथली पॉकेट मनी, और सामने वाले को हो सकता है 50,000 मिल रहे हो, किसी और को 5,000 मिल रहे हो, किसी को कुछ भी ना मिल रहा हो और उसको खुद और जॉब करके अर्न करना पड़ रहा हो, राइट। लेकिन जब हम किसी ग्रुप में ज्वाइन करते हैं और हम ऐसे ग्रुप में चले जाते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर लेवल बहुत ज्यादा होता है, और हम फिर उसको मैच करना शुरू कर देते हैं, तो दैट वी स्टार्ट से वो हमारा जो सेविंग का लेवल है ना, वो अपने आप कम हो जाता है, और फिर हम उस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, एक विशियस सर्कल में हम आ जाते हैं। तो आपको कंट्रोल होना चाहिए, और जब आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपके पास कंट्रोल आएगा। कंट्रोल मींस यू नो व्हेन टू से नो। You should always know when to say no, right? Great. This was a very important topic जो आपने बल्कि बोला सर. So everyone, be wise and make wiser groups, and उससे भी wiser friends. Okay सर. तो सर एज ए स्टूडेंट, जैसे आपने बोला कि हाँ वो एक्सपेंडिचर होता है और ऐसे भी तुम कमा नहीं रहे हो, तो सर अगर एक बच्चा नहीं कमा रहा है बट ही एक्चुअली वांट्स टू सेव अप, ठीक है, एंड बट वही है, ही नोज कि यार सेविंग से इतना जल्दी मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मतलब व्हाट कैन ही एक्चुअली डू टू स्टार्ट सेविंग इफ ही इज नॉट अर्निंग एज अ स्टूडेंट? सी इफ यू आर नॉट अर्निंग एज अ स्टूडेंट, तो आपके पास तो एक ऑप्शन तो हट गया ना, कि आप कुछ एडिशनल और जॉब्स करके, या कुछ भी आज की डेट में बहुत सारी से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपने उनको भी यूज नहीं कर पा रहे हो अगर, ठीक है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बहुत ही डिसिप्लिन होके अपने जो आपके मेजर एक्सपेंसेस हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, विच आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पहले उनकी तरफ एलोकेशन करना पड़ेगा, और आपको अवॉइड करना पड़ेगा कि आप बहुत सारे एक्सपेंसेस जिनको हम वांट्स क्लासिफाई करते हैं या फन मनी कह सकते हैं, ठीक है, तो उस फन मनी में आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आप नीड्स को तो रिड्यूस नहीं कर सकते एक लेवल तक से ज्यादा। ट्रू सर, one of the things आजकल हो रहा है कि many students, everybody wants to get educated today. Education is a prime thing in today's world. But it's almost like not everyone can afford that education. तो लोग क्या करते हैं, students क्या करते हैं, they go for student loans, right? And not everyone, but quite a lot people do get trapped in that debt loan and thing. So sir, how can one get educated but at the same time avoid taking on to so much debt in the very first place? देखो, स्टूडेंट लोन के साथ एक बहुत अच्छी बात ये है कि जब आप स्टूडेंट लोन लेते हो तो आपको इमीडिएटली रीपे नहीं करना होता। आपको रीपे करना होता है जब आपका कोर्स खत्म हो जाए, और कुछ उसके बाद भी एक जेस्टेशन पीरियड होता है, गैप होता है, कि आप उसमें जॉब ढूंढ लो और आप उस जॉब में जाके आप फिर उसको रीपे कर सको, ठीक है। तो एक वो गैप होता है, तो बहुत अच्छा टूल है टू फंड योर एजुकेशन, ठीक है। लेकिन अब गलतियां कहाँ होती हैं कि जहाँ पे आप उसको ओवरड्रॉ कर लेते हो किसी वजह से, ठीक है ना। राइट। दूसरा, आपने एक कोर्स ज्वाइन किया, आपको लगा कि हाँ दिस इज माय ड्रीम कोर्स, आपने ज्वाइन किया और आपको 6 महीने बाद, साल के बाद रियलाइज हुआ, ओ ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था। तो आपका लोन तो है, एक्सपेंस भी हो गया, अब उसकी रिकवरी नहीं है। दीज आर द एरियाज वेयर यू गेट ट्रैप्ड। तो ये एरियाज आपको अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और इंस्टेंस आता है तो आप वो शेयर कर सकते हो, आई कैन रिप्लाई टू दैट। ऑफ कोर्स सर, आई गेस फिर एक तो इसके अलावा कहीं तुमने एक डेप्ट तो ले लिया, स्टूडेंट लोन का डेप्ट, कहीं तुम और दूसरे डेप्ट्स ले रहे हो बेफालतू में, इंपल्सिव परचेसिंग, या चल भाई अब तो स्टूडेंट हो गए, कॉलेज में है, गाड़ी निकालते हैं, फिर तुमने भाई गाड़ी के लिए लोन ले लिया। आई मीन आई डोंट नो इफ अ स्टूडेंट कैन डू दैट। हां भाई, गाड़ी तो आपको मिलेगी नहीं, आपके पेरेंट्स या किसी ना किसी का इनकम देखा जाएगा तो ही आपको गाड़ी का लोन मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। बैंक इज नॉट अ राइट। हां, ठीक है ना। बैंक ओनली गिव्स यू लोन व्हेन इट नोज दैट यू कैन ईदर रीपे इट और इट कैन कलेक्ट फ्रॉम यू मोर मनी देन व्हाट इट हैज गिवन। नहीं, कई बार आई हैव आल्सो हर्ड सर, बच्चे आजकल ये चीज भी करते हैं कि सिंस बैंक, यू आर अ स्टूडेंट एंड बैंक वोंट हेल्प यू, तो ये मतलब लोकल ब्रोकर्स के पास जाना एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑल दीज
मिडिल पाथ्स लेकर शॉर्टकट लेकर कि हाँ चलो ठीक है ये तो दे देगा, एंड देन दे गेट जस्ट लाइक यू सेड दे गेट कॉट इन दिस विशियस साइकिल. सो दीज आर आल्सो सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन अवॉइड, है ना सर? देखो ट्रैप से आपको बचना चाहिए. अगर आप किसी ट्रैप में चले जाते हो तो उससे आपको निकलना पड़ता है, एंड इट इज ऑलवेज अ डेमोन्स्ट्रेशन वेदर यू कैन टेक अप एनी एक्सपीरियंस, एनी पर्सन. आपके पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी कि जो लोग ट्रैप्स में गए हैं, दोज हु फॉल इन द बैड कंपनीज, इन द रॉन्ग कंपनीज, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. एंड ऑफन क्या होता है कि उसके बाद फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. इससे यही चीज हम कंक्लूड करना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि हाउ डू वी एक्चुअली प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम सच फाइनेंशियल स्कैम्स, फ्रॉड्स, एंड हाउ डू यू नॉट बिकम अ विक्टिम, बिकॉज़ इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंटेंट. जब भी आप किसी स्कैम में फंसोगे तो स्कैम क्या होता है? आपने कभी एक माउस ट्रैप या एक फिशिंग के बारे में सुना है या करी है फिशिंग? या कभी जी घर सर, में देयर इज ऑलवेज अ कैच जो तुम्हें ललचा देती है. ठीक है, एंड देयर इज ऑलवेज अ ट्रैप. राइट, राइट. और ट्रैप को यूजुअली एक तरह से हिडन किया जाता है उस बेट से, ताकि यू कम एंड यू फॉल इनटू दैट. ठीक है, अब वो बेट क्या होती है? somebody will come and promise you unrealistic gains. ठीक है, मैं आपको ऐसी जॉब दिलवाऊंगा कि आप एक साल में 1 करोड़ कमा लोगे. आप यू विल बी अ करोड़पति. यू कैन बिकम अ करोड़पति बाय डूइंग ऑनलाइन जॉब्स. ठीक है, so you have to first understand whatever the person is saying, is it realistic or not. राइट. ठीक है, अब दूसरा क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें बहुत सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, बट असल में वो चीजें फ्री नहीं होती हैं. देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट, एंड somebody is going to pay for it. जैसे वो या तो आप आज बोलते हैं ना सर. कॉस्ट, हाँ, या आप 4 दिन के बाद दोगे, लेकिन दोगे जरूर. अब वो कॉस्ट वही. किसी भी हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा आपको अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहिए. हर जगह पे शेयर नहीं करनी चाहिए. यस सर, यस. These are the बिकॉज़ अभी यही होता है ना सर, वी आर एक्सपोज्ड टू सो मेनी थिंग्स कि आधे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो इट्स ऑलरेडी आउट. सी आप, अगर आपको ऐसा कभी लगता है, या देखो सबसे पहली चीज ये है कि आपको डाउट होना चाहिए, कि आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि मैं कहीं गलत चीज में तो नहीं फंस रहा. ठीक है, जब आप इस कॉन्शियस लेवल पे होगे तो ही आप बच सकते हो स्कैम से या फ्रॉड से. राइट. मैंने अपनी लाइफ में खुद भी बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स जो कि कॉमन है. आपका फोन हैक कर लेंगे एनीडेस्क के थ्रू, या आपका सिम क्लोन कर लेंगे. मैं ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम से बचा हूँ, क्योंकि मुझे एंट्री लेवल पे कुछ डाउट हुआ कि ऐसा कैसे. इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाली बात. तो ऐसी चीजों से आपको बचना पड़ेगा. और लाइफ में जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं रेज करोगे कि एम आई गेटिंग इनटू द करेक्ट थिंग और नॉट, तो आप फंसते जाओगे. राइट. ओके, ओके सर. आजकल एक तो फाइनेंस अभी स्पेशली फॉर अस मिलेनियल्स एंड जेन जी एंड ऑल दीज न्यू जनरेशन दैट आर कमिंग अप, अभी कॉन्सेप्ट्स अचानक से. के बाद जेन जी है, उसके बाद तो कोई आई नहीं. सर मतलब वही है ना, मतलब मेरे को तो दिखता है छोटे छोटे बच्चे, इनको पता है व्हाट इज स्कूल स्टूडेंट्स, दे नो व्हाट इज क्रिप्टो एंड ऑल दीज थिंग्स. अभी आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मतलब जब तक मैं छोटा था तो ठीक है कैश वैश चलता था, फिर धीरे धीरे पेटीएम आया. पेटीएम भी बहुत सिलेक्टिव जगह पर आया, अब ठेले वाले लेकर घूम रहे हैं. सो लाइक करेंसी इज नो मोर अ नोट और कॉइन, इट इज बियॉन्ड सो मेनी थिंग्स. तो सर हम किसको रिलायबल सोचे, एंड व्हाट डू यू हाउ डू वी डू आवर ओन रिसर्च कि क्या रिलायबल है बिफोर वी एक्चुअली रिलाई ऑन टू समथिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे कि आपने कहा कि पहले कैश चलता था, कैश हैड इट्स ओन रिस्क्स. ठीक है ना, आप घर में रखते थे तो थेफ्ट हो सकता है. घर में रखो कैश तो थेफ्ट हो सकता है. ठीक है, पैसा उसके लिए लोगों ने बैंक में शुरू किया रखना. बैंक में जब रखते हैं तो चेक के फ्रॉड्स होने शुरू हुए. ठीक है, जब हमने डिजिटल वॉलेट्स में मूव किया तो इनिशियली बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, जैसे क्यूआर कोड वगैरह की वजह से आज भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं. ओटीपी आ गया, भेज दो, ये सारी चीजें. तो हम फ्रॉड्स से, जब तक हमें उस चीज को यूज करने की जानकारी नहीं होगी सही, तो हम फ्रॉड्स में फंस सकते हैं, गलती कर सकते हैं. ठीक है ना, चेकबुक अगर आपके पास है, आपको उसे सेव करके रखना है, आपको उसको अकाउंट पे ही करना है. ये बेसिक रूल्स हमें पता होने चाहिए यूज करने के. ठीक है, देन ऑल योर मनी शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है और आपने उसी को डिजिटल पे कर दिया, कल को फ्रॉड हुआ तो सब कुछ गया एक ही बार. तो उसके लिए आप 2 बैंक से अकाउंट यूज कर सकते हो, या आप डिफरेंट तरीके से अपने मनी को कैटेगराइज कर सकते हो, या लिमिट्स प्लेस कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में. ओके, तो ये चीजें पता होनी और इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है. राइट. चलो ठीक है सर. सर एक और क्वेश्चन क्रिप्टो पे आपने पूछा था. सॉरी, बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सर क्रिप्टो पे मतलब भाई मेरा बेसिकली यही था सर. नॉट आई वांट आस्क वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस बिकॉज़ वी डोंट वांट एनी कंट्रोवर्शियल टॉपिक टू बी हियर.
वी वोंट से व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वी बेसिकली वांट टू नो कि भाई जैसे आपने बोला वो बेनिफिट ऑफ डाउट होना चाहिए। जब कैश था तब भी फ्रॉड हुआ था, अब भाई ये जिंदगी भर कैश नहीं रहेगा, आज वॉलेट है, क्रिप्टो है, कल कुछ और निकल जाएगा, कुछ और निकल जाएगा, मेनी थिंग्स विल कम, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ फ्रॉड, व्हाट यू आर सेइंग, राइट? एंड हमें वो डाउट रहना चाहिए दिमाग में टू फाइंड आउट अबाउट इट। ग्रेट सर, देन आई गेस यू ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू गो इनटू डेप्थ ऑफ दैट? बल्कि सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि हर कोई ये बताता है कि यार बहुत कॉमन हो गया हमारे जनरेशन में ये चीज बोला, यार टैक्स के बारे में कोई हमें स्कूल में क्यों नहीं बताता यार, बड़े होने के बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सर इसका पहले आंसर दो, एक्चुअली क्यों नहीं पढ़ाया जाता, कोई रीजन है क्या? नहीं देखो, टैक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें आई गेस 11th या 12th में इंट्रोडक्शन तो मिल जाता है। हाँ जी। ठीक है, कॉलेज में जब जाते हैं जो लोग कॉमर्स लेते हैं उनको थोड़ा सा और उनके लिए उनके पास सब्जेक्ट भी आ जाता है अब तो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब तक हम अर्न करना नहीं स्टार्ट करते और हमारी जेब से एक्चुअल में टैक्स जाना नहीं शुरू होता, तब तक हम कई बार उससे फील नहीं करते। वो इम्पोर्टेंस भी नहीं देने वाली बात होती है। उससे पहले क्या होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और वो भी क्या होगा कि व्हाट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब हम उसको एक्चुअली में रियलाइज करते हैं कि हमारा तो देखो, यू आर अर्निंग से 100 रुपीज, आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, उसके बाद अगर आप टॉप ब्रैकेट में आते हो 30% के, तो 30 रुपीज तो गवर्नमेंट यहाँ ले जाती है आपसे। ठीक है, देन व्हेन यू आपके पास बचा कितना, 70 रुपीज। अब आप गए, आपने कोई सर्विसेज ली मार्केट में से, आपने हेयर कट के लिए गए, आपने सर्विसेज ली, ठीक है, और उसके लिए आपका बिल आया 70 रुपीज, और उसने उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया 18% का, तो आप इवेंचुअली ज्यादा पैसे, आपके पास पूरे पैसे बच गए, चले गए, और जीएसटी भी और आपको सेविंग्स में से देना पड़ेगा जी। एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इट इज नॉट परफेक्ट, ओके, बट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 70 रुपीज बचे हैं, तो आप उसमें से ही आपको स्पेंड करना है और जीएसटी भी देना है, तो इवेंचुअली आपकी जो इनकम है उसका, अगर आप टॉप ब्रैकेट में आ रहे हो, तो आपका 30 to 40% गवर्नमेंट के पास जा रहा है। दिस इज टैक्स, राइट, and government uses it for its own purpose, for building up the infrastructure, paying the salaries of the government officers, और भी XYZ payments होते हैं। इलेक्शंस के ऊपर भी बहुत खर्चा होता है हमारे देश में। वो तो आई सर, हमें ब्लॉक नहीं करवाना हमारा पेज। बट चलो सर, राइट सर, जस्ट लाइक आपने ये बोला टैक्स के बारे में, मैंने इससे मुझे याद आता है कि आई सॉ रील वंस, मतलब ऐसे ही आजकल तो फाइनेंस के ऊपर हर कोई रील बना रहे हैं, काफी लोग रील बना रहे हैं, तो एक रील ऐसा आया कि बंदा बोलता है कि मेरे तो टैक्स ज्यादा कट रहे हैं, वो कहता है तेरे ज्यादा कट रहे हैं, मेरे तो काफी कम कट रहे हैं, क्योंकि मैंने नया स्कीम नहीं, मैंने पुराना स्कीम के लिए अप्लाई करा, एंड ऐसे नए 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 होते हैं, तो यू कैन गो देयर और तुम क्लिक कर सकते हो, और फिर तुम चेंज कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और जैसे आप कहते हो वो डाउट आता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कमेंट सेक्शन खोलता हूँ, कमेंट सेक्शन खोल दो तो 1000 लोग हैं जो बोल रहे हैं बढ़िया चीज बोल रहा है बंदा, 1000 लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या बकवास कर रहा है। तो सर हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम सच टिप्स, क्योंकि once social media got open, everybody wants to give us advices. So now the problem is, एक टाइम था जब कोई एडवाइस करने वाला नहीं था, अब ऐसा है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, एडवाइस ही एडवाइस है, पता नहीं है क्या करना है, एप्पल खाना है, पेयर खाना है। जो आपने बात करी, मैं भी रील्स बनाता हूँ, आई आल्सो रेज माय हैंड। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं दोनों पॉइंट से आपकी क्वेरी को आंसर करूंगा। एक तो कि व्हेन वी आर मेकिंग अ रील फ्रॉम अ क्रिएटर साइड, ठीक है, और एज अ प्रोफेशनल आल्सो। अब क्रिएटर साइड पे क्या होता है कि आपको एक कंटेंट को, जो कि किसी को समझाने में बहुत टाइम लग सकता है, आपको उसे 1 मिनट के अंदर पैक करना होता है, तो आप हर चीज नहीं दे सकते हो उसमें, ठीक है। और टैक्स इतना कंडीशनल है, मैंने कई रील्स भी बनाई है जिसमें मैं ये बोलता हूँ यार हमेशा टैक्स एडवाइजर को कंसल्ट कर लो, क्योंकि टैक्स इज अ वेरी कंडीशनल सब्जेक्ट। एक चीज आपके लिए अप्लाई कर रही है, दूसरे वाले के लिए नहीं कर रही है, और क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उसने 2 साल पहले कोई और फेवर ले लिया था गवर्नमेंट से, या टैक्स में कोई एग्जेम्पशन ले ली थी, इसलिए उसके ऊपर नहीं कर रही है। ठीक है, या उसे एक फॉर्म भरना चाहिए था, उसने वो फॉर्म नहीं फाइल किया, रिटर्न भरते टाइम बाद में नोटिस आ गया। सो टैक्स अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे, जिस समय हमने अपनी क्वालिफिकेशन करी है, जिस समय हमने सीखा टैक्स, देयर वाज अ वेरी, मतलब जो भी बिजनेस कर रहे थे या जो भी एक अच्छे लेवल पे सैलरी अर्न कर रहे थे, पीपल यूज्ड टू हैड वेरी से दे वर वेरी कॉशियस अबाउट टैक्सेशन। बीच में एक पीरियड आया कि एकदम इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हुआ, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स आ गई, एंड पीपल स्टॉप्ड गोइंग टू द प्रोफेशनल्स। Many people stopped going to the professionals and they started doing their compliances and everything on the online. अब क्या है, ऑनलाइन बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, लेकिन जैसे गाड़ी है, गाड़ी आपको चलाने के लिए आपको गाड़ी की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, तो आप उसको ठीक से चला सकते हो। अब बहुत लोग कहा कि पैसे बच जाएंगे प्रोफेशनल के पास जाने से, और हमारा तो सिंपल सा है, और कई बार उन लोगों के ऊपर भी कंडीशंस कई अप्लाई होती हैं, और वो अपने रिटर्न को गलत भर देते हैं, फिर बाद में दे गेट इनटू दिस प्रॉब्लम
with the taxation authorities. Okay. अब उसके बाद क्या हुआ, अब एक नया आ गया ट्रेंड आ गया इन्फ्लुएंसर्स का. अब इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी चीजें बोलते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि 1 मिनट के अंदर उस कंटेंट को पैक करना मुश्किल होता है. ठीक है. और अगर मैं सिंपल भी बताता हूँ ना, एक चीज को अगर मैं सिंपली बताना शुरू करूँ एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर, तो आधे से ज्यादा लोग ना 10 सेकंड भी नहीं देखेंगे या 2 True. सेकंड भी नहीं देखेंगे, वो उसको कर देंगे, ऊपर कर देंगे, और वो वेरी उसको ट्रू सर. मेरे को सुनेंगे. बिल्कुल सर, पता है इसी रीजन की वजह से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो 20 मिनट से क्या आप लोग 10-10 सेकंड में भी या 20-20. The best part is they are creating awareness. इसके लिए it is, say I'll give full marks to them. But when it comes to your personal taxation or personal finance, it is always preferable to have an advisor, a tax practitioner or a financial advisor on your side who can say help you avoiding many mistakes that you can do. Right. 100% risk cover वो तब भी नहीं होता, लेकिन say a considerable portion of risk gets covered in that. ग्रेट सर. मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मतलब टेल मी इफ आई एम राइट, तो कहीं ना कहीं आप यही कहना चाहते हो राइट कि एक तो टाइम ज्यादा स्पेंड करो, ये छोटे कंटेंट पर इतना हमें शायद रिलायबल नहीं रहना चाहिए. इफ यू वांट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बी विलिंग टू स्पेंड दैट मच टाइम. वो 10 सेकंड 1 मिनट हमें नहीं हेल्प कर सकते. नहीं, राइट. लेकिन आपको अवेयर आपका थॉट प्रोसेस ओपन कर सकते हैं. हाँ, एक बार आपको इट कैन जनरेट दैट स्पार्क. बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम रील देख देख कर फाइनेंशियल नॉलेज ले लोगे, तो दैट इज नॉट ट्रू. रील देखकर ना सर ने फाइनेंशियल नॉलेज लिया है ना किसी और. फाइनेंशियल नॉलेज एक इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा एरिया है. जो लोग करते हैं, जो लोग प्रोफेशनली भी करते हैं, दे हैव टू कीप अपग्रेडिंग देमसेल्व्स. उनको भी पढ़ना पड़ता है, और उनको आपसे ज्यादा पढ़ते हैं. बिल्कुल. सो इट्स ऑलवेज गुड टू कॉन्टैक्ट अ प्रोफेशनल सर. जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, खुद मेडिसिन नहीं लेना चाहिए. पैसे के लिए भी तुम्हें अगर कुछ इफ यू वांट टू गेट योर लाइफ ऑन ट्रैक, ईदर डू योर ओन रिसर्च अच्छे से टाइम स्पेंड करके, और गो टू अ प्रोफेशनल. है ना सर? चलो, ग्रेट सर. सर फिर इससे आई गेस वी कैन कंक्लूड दैट बुक्स माइट हेल्प. व्हाट आर योर टॉप 3 बुक्स? रैपिड फायर. चलो बताओ. For books, one is Psychology of Money. And Psychology of Money. There is Let's Talk Money by Monica Hallan. And एक अमित त्रिवेदी की भी बुक है which is on the stock market scams. मुझे उसका इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा नाम. और मेरे पास तो खैर बहुत सारी फाइनेंशियल के ऊपर बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स भी है. ओके. चलो सर, ये तीन पॉइंट्स एंड दीस 3 बुक्स गाइस याद रखो. टाइम मिले बताओ, रिव्यू दो हमें कि कैसा है. तो मजा आया ना. मैं बुक लिख भी रहा हूँ. Hopefully बिल्कुल. तो मैं यही अभी बोलने वाला था सर. इतना मजा आ रहा है ना कि अगले बार मैं अगर पूछूंगा सर आप टॉप 3 बुक्स बताओ, सर अपना बुक बताएंगे, ये वाला बुक. बट सर ये अगले बार मैं खुद बोलूंगा कि हाँ ये वाला बुक मेरा फेवरेट है. तो एक्सपेक्ट सर, when can we expect that book to be out? Next 3 months. चलो, the next 3 months. Okay sir. Is there any concluding points that you have for me, for for the viewers watching? So I'll just conclude with this ki, as when you are just starting out right now, say in a college, tomorrow you are going to get into job. ठीक है. अभी तो आपके पास पॉकेट मनी होगी और मे बी थोड़े बहुत पैसे होंगे. So start managing your money, start investing your money. अभी एक एक्सपोजर लेना शुरू कर दो इन्वेस्टिंग का भी. ठीक है. और क्योंकि जब आप when you will get to the job and you will earn in lakhs, ठीक है, तो आप उसको और बेटर वे में मैनेज कर पाओगे. आपने अगर कुछ गलतियां अभी करनी है तो आप कर लोगे. ओके. ठीक है. मिस्टेक्स के साथ क्या है, चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे वो बेशक आपका फाइनेंस हो, पर्सनल फाइनेंस हो, इन्वेस्टिंग हो, यू विल कंटिन्यू टू मेक मिस्टेक्स. इवन द पीपल हु आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम, दे आल्सो कंटिन्यू टू मेक देयर ओन मिस्टेक्स. बट आपको एक बैलेंस करना आ जाएगा चीजों को धीरे धीरे. ग्रेट एडवाइस सर. थैंक यू.